Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Today in this video I'm going to explain a disease which is called osteoporosis to you. So first of all we'll have to see what we are going to study regarding osteoporosis. So first have a look at that. Topics to be covered includes introduction, definition, causes, people who are at risk, symptoms, diagnosis, treatment, case study. So these all topics we will cover in this presentation. So we will study these all one by one. So first of all let's have a start with the introduction. So introduction to osteoporosis. Osteoporosis literally means porous bone. Okay, it is a condition in which the bones get damaged in a way that the bones mass get reduced, its density is reduced, bones architecture is deteriorated, the bones are prone to get fracture. यानी एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर बोन जो है ना वो पोरस हो जाते हैं, बोन की ताकत कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बोन का मास कम हो जाता है, साथ ही साथ बोन जो है ना फ्रैक्चर होने के भी प्रोन होते हैं, यानी वो कभी भी फ्रैक्चर हो सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बोन का आर्किटेक्चर भी बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारी की सारी वजूहात होती है, ये सारी की सारी जो है ना चीज़ें इस बीमारी के अंदर पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसकी डेफिनेशन की जानिब, लेकिन डेफिनेशन की जानिब बढ़ने से पहले वी विल हैव टू सी सम पिक्चर्स which are going to show difference between osteoporotic bone and normal bone. So now you can see we have two different kinds of bones. One is normal bone and another is osteoporotic bone. So as we have studied that the osteoporosis literally means porous bone. So you can see the pores here, and this is because of this porosity in the bone that we say that the strength of the bone is reduced, the density of the bone is reduced, the mass of the bone is reduced. तो ये सारी की सारी वजूहात इसी पोरोसिटी की वजह से है, क्योंकि यहाँ देखो आपके पास बोन्स के सेल्स जो है ना बहुत सारे हैं, ये पूरी तरीके से मौजूद है। और यहाँ अगर आप ऑस्टियोपोरोटिक बोन को देखते हैं तो बहुत सारे सेल्स जो कि नॉर्मल सेल में मौजूद थे और अब वो यहाँ नहीं है, यानी वो सेल्स यहाँ से डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं और इसी वजह से ये बोन जो है ना वीक हो चुका है, क्योंकि इसका मास भी कम है, इसकी डेंसिटी कम है, इसकी स्ट्रेंथ कम है। तो जब इसके साथ ये सारे के सारे मसाइल है तो अब ये बोन जो है ना फ्रैक्चर के लिए प्रोन है कि इसको फ्रैक्चर भी हो जाए। अब यहाँ पर मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा। यू कैन सी द नेक्स्ट पिक्चर इज़ वेल। बाय दिस पिक्चर वी कैन कंपेयर बिटवीन द बोन्स हेल्दी एंड ऑस्टियोपोरोसिस बोन, ऑस्टियोपोरोटिक बोन। सो यू कैन सी दिस एंड यू कैन कंपेयर द बोथ बोन्स. Now let's start the definition of the osteoporosis. World Health Organization defines osteoporosis as a systemic skeletal disorder characterized by a low bone mass and microarchitectural deterioration of the bone tissue with a subsequent increase in the bone fragility and susceptibility to fracture. About the all things which we studied, which we cover in the introduction, are summarized in this particular definition by WHO. So what it says that it is a skeletal disorder and the bone mass is reduced in this disorder and fragility is increased, the bones are susceptible to get fracture. तो सारी की सारी बातें जो हमने की वो सारी बातें इस डेफिनेशन में समराइज़ की गई है, ठीक है। इसके बाद हम इस कॉजेज़ की तरफ जाते हैं. सो व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू सी द एज फैक्टर. Age factor is very much common, especially during the third or fourth decade of the life of a human being. So there is a very much high risk of this disease. Another cause can be a menopaused women. Menopaused women are very much susceptible to osteoporosis because of the hormonal changes in their body, so this which can lead to osteoporosis. It can also be caused by medications such as anti-epileptic drugs, corticosteroid. If you are going to use corticosteroid for a long term, so it can be a cause of osteoporosis as well. So because of thyroid hormone, the hormone deficiency, it can also occur because because of thyroid hormone, the deficiency of calcium can occur, which can cause the osteoporosis, because calcium is very much important for the bone. So if calcium is reduced, the bone will be having less strength, so it will be prone to deteriorate. Deficiency of vitamin D can also cause this condition, because vitamin D is we knows that vitamin D is very much important for the bones. A person who is not taking proper diet
यानी उसकी डाइट प्रॉपर नहीं है, उसकी डाइट के अंदर कैल्शियम पूरी तरीके से नहीं है, बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो नहीं है, यानी वो भी इस कॉज हो सकती है इस डिजीज़ की। सो कॉजेज़ इस ऑस्टियोपोरोसिस की डिफरेंट हो सकती है, मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ टाइप की कॉजेज़ है, जिसके अंदर आपके पास एज फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है और साथ में पोस्ट मेनोपॉज। ये दो बड़े ही की फैक्टर है, ठीक है। एक एज है और पोस्ट मेनोपॉज है। एज की वजह से आपको एज जो है ना, इसकी वजह ये हो सकती है कि एज जैसे जैसे इंसान की बढ़ती जाती है, साथ ही साथ उसमें जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ रही है तो सेल फॉर्मेशन कम होती रहती है और सेल डिस्ट्रक्शन बढ़ती रहती है। यही हाल हमारे पास बोन्स के साथ भी होता है। बोन्स में क्या होता है कि बोन्स हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स है और ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स है। ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए होते हैं, और सेल्स बोन सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए होते हैं, ब्रेक करने के लिए होते हैं। और ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास उसके लिए होते हैं कि नए बोन फॉर्मेशन हो, नए बोन सेल की फॉर्मेशन हो। तो जब ऑस्टियोब्लास्टिक की एक्टिविटी ज़्यादा हो और ऑस्टियोक्लास्टिक की कम हो तो ये हमारे लिए बेहतर है, और क्योंकि इससे न्यू सेल बन रहे हैं, बोन स्ट्रेंथ बढ़ रही है। लेकिन अगर ऑस्टियोक्लास्टिक की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर टू ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स तो क्या होगा कि सेल्स डिस्ट्रॉय ज़्यादा होंगे और फॉर्मेशन न्यू की कम होगी, तो अल्टीमेटली सेल कम होते जाएंगे और यही कंडीशन आ जाएगी जो मैंने आपको इस वाली पहली वाली तस्वीर में दिखाई थी कि यहाँ थी कि सेल्स की कमी हो गई। तो ये कंडीशन पैदा हो जाएगी जब ऑस्टियोक्लास्टिक की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी और ऑस्टियोब्लास्टिक की कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि पीपल हु आर एट ए रिस्क, वो लोग जो रिस्क पर है कि इनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क क्या है? रिस्क फैक्टर फीमेल इसलिए है कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मेनोपॉज था। मेनोपॉज क्या है कि जब पोस्ट मेनोपॉजल पर वुमेन जाती है तो उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से बोन वीक होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा फीमेल्स का बॉडी फ्रेम भी ऐसा होता है, बोन ज़रा थिन से होते हैं और वीक से होते हैं, तो इसीलिए वो ज़्यादा प्रोन है। इसके अलावा और क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, कैफीन और एक्सरसाइज वगैरह, ये चीज़ें भी हो सकती है कि रिस्क फैक्टर में शामिल हो। डाइट भी एक रिस्क फैक्टर है। अगर आपके पास कैल्शियम कम है आपकी डाइट में तो रिस्क है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो। न्यूट्रिशन अगर सही नहीं हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। माल अब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, ठीक है। माल अब्जॉर्प्शन का मतलब किसी एक चीज़ की कमी आपके डाइट में, तो ये भी एक कॉज हो सकती है। एस्ट्रोजन लेवल का कम होना जिस तरह पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होता है, तो वो भी एक कॉज हो सकती है। क्रॉनिक डिजीज़ आर्थराइटिस टाइप की या हेपेटाइटिस सी या कोई और इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी आपके ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की कि ये भी इस बीमारी के सिम्टम्स किस तरह के हैं। तो सिम्टम्स जनरली इनिशियली कोई सिम्टम नहीं होता इस बीमारी में, कोई भी सिम्टम नहीं होता इनिशियली, या मामूली सा बैक पेन हो सकता है, और ये बैक पेन मामूली सा बैक पेन किसी भी वजह से हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा अक्सर पेशेंट जो है ना इसको इग्नोर करता है या कोई भी पेन किलर लेके उससे वक्ती तौर पर जिससे उनको फ़ायदा हो वो इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है। लेकिन अगर ये ऑस्टियोपोरोसिस है तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसी वजह से क्योंकि सिम्टम कोई ख़ास स्पेसिफिक सिम्टम होते नहीं है तो इसीलिए ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती रहती है। तो क्या बैक पेन हो सकता है, फ्रैक्चर, कोलैप्स वर्टिब्रा। दूसरा हाइट जो है ना कम हो जाती है। हाइट कम इन द सेंस दैट आपकी बोन झुकना शुरू हो जाते हैं, पोस्चर जो है ना इंसान का डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और इसकी एक सबसे अहम वजह ये, एक अहम सिम्टम ये है कि आपके बोन जो है ना वो अनएक्सपेक्टेडली ब्रोक होने शुरू हो जाते हैं। यानी फ्रैक्चर या ब्रोक होना अनएक्सपेक्टेडली होता है। छोटा सा ट्रॉमा भी हो या कुछ भी हल्की सी चोट भी लग जाए उससे भी आपका बोन जो है ना वो ब्रेक हो सकता है। तो एक ये भी बड़ा ये भी एक सिम्टम है कि आपको अचानक से अगर हल्की सी चोट लगती है और जिससे कि आपका बोन जो है ना वो ब्रेक हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बोन पहले से ही वीक था। तो इसीलिए यहाँ दो चीज़ें होती हैं। जब छोटी सी हल्की सी चोट से या हल्की सी ट्रॉमा या स्लिप होने से अगर किसी को चोट लगती है तो इसकी वजह आमतौर पर यही होती है कि इस स्लिप जो है ना इस होने से ये बोन टूटा नहीं है। इसकी वजह ये है कि इसका बोन ऑलरेडी वीक था
ऑलरेडी यानी ये वीक था, फ्रैक्चर था, ऑस्टियोपोरोटिक बोन था, तभी जाके हल्की सी चोट को ये बर्दाश्त ना कर सका और ये ब्रेक हुआ। सिम्टम्स के बाद हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। सो हाउ वी कैन डायग्नोज दिस, वी कैन डायग्नोज दी ऑस्टियोपोरोसिस बाय एक्स-रे, CT स्कैन, MRI, नर्व टेस्ट, बोन डेंसिटी टेस्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट आर देयर। we can diagnose the osteoporosis by all these tests. If a doctor want to have a detailed view of the bone, so he will recommend CT scan to you. If the doctor wants to see the tumor in the spine, so it is so for this we will use MRI testing and bone density for low. If there is a density of the bone is low, so it means that there is osteoporosis. So this was regarding the diagnosis. So after the diagnosis of the disease, we will have to go toward the management of the disease. In management, we have two types of management: pharmacological management and non-pharmacological management. In non-pharmacological management, we do not usually prescribe any kind of medicine, but we treat the patient with by changing in his lifestyle and by diet and these kind of things. So first of all, in non-pharmacological management, what we will do, in non-pharmacological management, the patient should be advised to take calcium and vitamin D enriched diets, the diets which are enriched in calcium plus vitamin D. So he should be advised to take these. Avoid weight bearing exercises. Smoking should be avoided. Reduce tea and coffee. If coffees, that should be reduced. If the person is taking too much teas or coffee, so it should be reduced to 1 and 2 serving per day. So this can so he can manage the disease by this way as well. So if a person is alcohol addicted, so he should avoid alcohol. If the disease is not treated pharmacologically, so we can move toward the medications as well. तो medications में हम जाते हैं अगर हमारी बीमारी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जैसे हमने बताया कि जिसके अंदर लाइफस्टाइल की चेंजेस होती है, डाइटरी चीज़ें, डाइट पर हम जो है ना चेंजेस लाते हैं, तो अगर उससे नहीं होता तो फिर हमें मेडिकेशन की जानब जाना होगा। और दूसरी वजह ये है कि जब आपकी डिज़ीज़ क्रॉनिक कंडीशन में पहुंच जाए तब जाके आपको मेडिकेशन पे जाना पड़ता है। ठीक है, तो इन मेडिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले हमारे पास है बिस्फोस्फोनेट। हमारे पास डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, एलेंट्रॉनिक एसिड, एबेंट्रॉनिक एसिड, राजिट्रॉनिक एसिड, जोलिट्रॉनिक एसिड। ये बिस्फोस्फोनेट हमारे पास मौजूद है और ये बिस्फोस्फोनेट ऑस्टियोपोरोसिस में बड़े में काम आते हैं। ठीक है, बिस्फोस्फोनेट करते क्या है, इट स्लोज डाउन द रेट ऑफ द बोन ब्रोकन डाउन इन योर बॉडी। यानी जो जिस रेट से बोन ब्रेक हो रहे हैं उनको स्लो करेंगे, इसीलिए जब उनको वो ब्रेकन डाउन ऑफ द बोन स्लो होगा तो जाहिर सी बात है कि बोन की जो है रिस्क जो है ना कि बोन ब्रेक हो वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बिस्फोस्फोनेट किस तरह लेना चाहिए, बिस्फोस्फोनेट शुड ऑलवेज बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट लेना होगा। इसके अलावा बिफोर एनी फूड, यानी कोई भी खाना वगैरह खाने से तकरीबन आधे घंटे से 2 घंटे कबल ही लेना होगा। और आफ्टर व्हेन वी हैव टेकन बिस्फोस्फोनेट विल हैव टू स्टैंड फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। इसकी वजह ये होती है कि जब भी हम बिस्फोस्फोनेट कंज्यूम करते हैं तो एक GI रिफ्लेक्स के चांसेस होते हैं। तो GI रिफ्लेक्स से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम एक फिट स्टैंड पोजीशन में खड़े हो ताकि ग्रेविटी के ज़रिए ये GID के चांसेस कम हो जाए। ठीक है, इसके अलावा बिस्फोस्फोनेट वी टेक्स फॉर 6 to 12 months to work. You may need to take it for more than 5 years or longer. तो बिस्फोस्फोनेट हम यूजुअली 6 महीने से साल तक के लिए लेते हैं, लेकिन अगर उससे भी डिज़ीज़ जो है ना वो ना मैनेज हो तो हमें ये मज़ीद 5 साल या 5 साल से ज़्यादा अरसे के लिए भी यूज़ करना पड़ता है। कैल्शियम और सप्लीमेंट्स जो है ना वो हम इसके साथ साथ यूज़ नहीं कर सकते। हमें थोड़ा हमें उसमें क्या करना पड़ेगा कि हम कुछ देर बाद रखेंगे। यानी मिसाल के तौर पर जब अगर हम कैल्शियम यानी बिस्फोस्फोनेट ले रहे हैं तो उसी वक्त हम कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं लेंगे, कुछ देर बाद लेंगे डिफरेंट टाइम में। इसके अलावा हमारे पास सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। इसमें हमारे पास रिलॉक्सिफिन एक है जो कि हम ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। एक टेबलेट डेली दी जाती है
पेशेंट को जिनको कोई ऑस्टियोपोरोसिस हो, इसका काम क्या है कि ये एस्ट्रोजन की तरह का काम करता है, बोन की डेंसिटी को मेंटेन रखता है, फ्रैक्चर को रिस्क को कम करता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन है। पैराथायरॉयड हार्मोन नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं हमारे जिस्म में। ये हमारे जिस्म में क्या करते हैं कि कैल्शियम को मेंटेन रखते हैं, रेगुलेट रखते हैं। तो कभी कभार पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी की वजह से हो सकता है, या इसमें पैराथायरॉयड हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से भी ये डिजीज़ प्रोग्रेस कर सकती है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे उन सेल्स को कि जो नए सेल बनाए। जैसे हमने पहले बात की थी कि ऑस्टियोक्लास्टिक और ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स, तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन क्या है, ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स के बजाय ऑस्टियोब्लास्टिक सेल को स्टिमुलेट करेंगे कि वो नए सेल्स बनाएं। जब न्यू बोन बनेंगे, नए बोन बनेंगे, तो जाहिर सी बात है जब न्यू बोन बनेंगे तो बोन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बोन का मास बढ़ेगा और ऑस्टियोपोरोसिस कम होगी, ठीक है। ये इंजेक्शन के ज़रिए देते हैं। बाकी मेडिसिन्स और पैराथायरॉयड हार्मोन में फ़र्क क्या है। पैराथायरॉयड हार्मोन बाकी मेडिसिन्स क्या करते थे, जैसे हमने बिस्फोस्फेनेट को पढ़ा या बिस्फोस्फेनेट को पढ़ा, तो उसका काम क्या था कि वो बोन के ब्रेक डाउन को स्लो कर रहा था। लेकिन यहाँ जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये स्लो नहीं कर रहा बोन के ब्रेक डाउन को, बल्कि उसका उलट कर रहा है, बोन की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। नए न्यू बोन जो है ना बोन पैदा कर रहा है। तो इसकी वजह से ये ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि इसको डिज़ीज़ को स्लो डाउन करने से बेहतर ये है कि आप इसको ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स की यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ बोन को जो है ना स्लो करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप नए बोन सेल्स बनाएं। तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन यही काम करता है, और ये हम उस वक्त देते हैं जब किसी पेशेंट की बोन डेंसिटी बहुत ही कम हो जाए, ठीक है, और बाकी कोई इलाज यानी बाकी कोई ट्रीटमेंट से उसको फ़ायदा ना हो। इसके अलावा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी हो सकती है, ख़ासतौर पर ये मेनोपॉज़ल वुमेन के लिए होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हो तो क्या होता है कि बोन स्ट्रॉन्ग रहते हैं और रिस्क भी कम हो जाता है, जिस तरह बोन ब्रेक होने का, ठीक है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है ना ये रिकमेंड नहीं की जाती हर किसी को, ठीक है, लेकिन कभी कभार किसी कंडीशन में पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन को ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद टेस्टोस्टेरोन ट्रीटमेंट हम इसलिए उस वक्त करते हैं जब हमारे पास मेल हो और उसके मेल सेक्स हार्मोन के अंदर कमी हो, और जिसकी वजह से उनकी बोन की जो है ना वीक होना शुरू हो जाए, तो उसके बाद हम उसको टेस्टोस्टेरोन की ट्रीटमेंट से ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास केस स्टडी है, केस स्टडी को पढ़ते हैं। केस स्टडी को देखते हैं। A 66-year-old female old woman has brought by in emergency department by her daughter after being slipped in the shower. She had an X-ray of her right hip and leg. No fractures were noted, but the radiologist reported sign of osteoporosis in BM's hip bones. Home mineral density T-score is -2.6 and the hip and -2.0 at the spine. Her fracture assessment is tool facts score indicate that she has 10-year probability of major fracture. यानी सिंपली एक फ़ीमेल लाई गई है, उसकी बेटी उसको लाई है और उसको एक फ्रैक्चर हुआ था BM स्लिप इन शॉवर की वजह से। वो फ्रैक्चर कैसा था कि उस फ्रैक्चर के जब देखा गया तो फ्रैक्चर कोई नोट नहीं किया गया, लेकिन इसका T स्कोर जो हिप का आया है -2.6 आया है और स्पाइन का -2.0 आया है। और ये स्कोर इंडिकेट कर रहा है कि 10 years probability of a major osteoporotic fracture is for 45% of the hip and 19% of the spine। तो यानी इस इंडिकेट कर रहा है कि इसके हिप फ्रैक्चर होने के चांसेस 45% है और स्पाइन के फ्रैक्चर के 19% है। और ये मेथोट्रेक्सेट 20 मिलीग्राम ओरली ले रही थी वीकली, और नेप्रोक्सिन 500 मिलीग्राम भी दिन में 2 दफ़ा ले रही थी, और इसके अलावा कोई भी OTC मेडिकेशन वो नहीं ले रही थी। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है। अब अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑस्टियोपोरोसिस टू प्रिवेंट फ्रैक्चर इन मैन एंड वुमेन बाय अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन ACP रिकमेंड दैट द क्लिनिशियन
ऑफर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट विथ एलेंड्रोनेट, राइजिड्रोनेट, जोलिड्रोनिक एसिड और डिनोसुमेब to reduce the risk of hip and vertebral fracture in women who have non-osteoporosis T-score less than 2.3 -2.3 और those who have experienced fragility fracture। तो ये कुछ मेडिकेशंस अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने रिकमेंड की हुई है जो कि हम ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं, एलेंड्रोनेट, राइजिड्रोनेट, जोलिड्रोनिक एसिड या डिनोसुमेब, ठीक है। और उन लोगों को जिनको फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं, ओरल बिस्फोस्फोनेट्स भी हम इनिशियल एजेंट के तौर पर दे सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी एफिकेसी, सेफ्टी, अफोर्डेबिलिटी है। जोलिड्रोनिक एसिड भी का मसला ये है कि वो आर्थराइटिस या की कंडीशन को कर सकता है, तो इसलिए ये जोलिड्रोनिक एसिड को ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता, ठीक है। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेशन मेथोट्रेक्सेट भी लिया जा सकता है। डिनोसुमेब जो है ना वो इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ाता है,